Dear student, today I will be discuss two sub-content of the chapter An Empire Across Three Continents. First, the role of army in the early Roman Empire, and second, the process of decline of the Roman Empire. The army was one of the major institutions of the Roman Empire. The army of the Roman Empire was a paid professional army. Every soldier had to give minimum of 25 years of service. In fact, the existence of a paid army was one of the distinctive feature of the Roman Empire. The army definitely had the power to determine the fate of emperors, as it was the largest single organized body in the empire. There were constant agitations of soldiers for better wages and service conditions. These agitations most of the times were changed into the mutinies. Army was feared and hated by the Senate. It was so because it was a source of violence. The success of individual emperors was mainly dependent upon their control over the army. When the armies were divided, then the result generally was a civil war. रोम में सम्राट और सेनेट के बाद सेना शासन की एक प्रमुख संस्था थी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। चौथी शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। कभी कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में भी परिणत हो जाता था। सीनेट सेना से घृणा करती थी और इससे डरती थी। इसका कारण यह था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थीं तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन of the Roman Empire began in the West when Germanic groups of North conquered all the major provinces and established their kingdoms. Then the empire was fragmented in the West. The major provinces out of these were Visigoths in Spain, the Franks in Gaul, and Lombards in Italy. Justinian recaptured Africa from the Vandals in 533 CE. He also recovered Italy from the Ostrogoths, but this recovery left that country devastated. It cleared the way of Lombard invasion. The war between Rome and Iran started again by the early 7th century.
Since 3rd century, the Iran was ruled over the Sasanians. They launched an attack on all the major eastern provinces, including Egypt. When Roman Empire recaptured these provinces in 620s, then it was just few years away from the ultimate blow, which then came from the southeast. By 642 CE, Arabs conquered a large part of both the Eastern Roman and Sasanian empires. In this way, the Roman Empire completely declined. There are main causes of decline of the Roman civilization. First, of the major reason of decline of Roman civilization was imperialism. Democracy in Rome remained no more because of wars and imperialism. Second, the Roman civilization also declined due to political conflicts and corruptions. Third, authority of the Roman emperors declined with the spread of Christianity. Fourth, important, power of the Roman Empire also reduced with the invention of Germanic tribes of Goths, Vandals and Lombards. रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया पश्चिम से प्रारंभ हुई। साम्राज्य का पश्चिमी भाग बाहरी आक्रमणों के कारण विखंडित हो गया था। ये आक्रमण उत्तर की ओर से जर्मन मूल के समूहों ने किए थे। उन्होंने साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों को और अपने अधिकार में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे वे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, गॉल में फ्रैंकों का राज्य तथा इटली में लोम्बार्डों का राज्य प्रमुख है। 533 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन ने अफ्रीका को वैंडलों के अधिकार से मुक्त करवा लिया। उसने इटली को भी मुक्त कराकर उस पर फिर से अधिकार कर लिया, परंतु इटली पर पुनः अधिकार से देश को क्षति पहुंची, क्योंकि इससे देश छिन्न भिन्न हो गया और लोम्बार्डों के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक रोम और ईरान के बीच भी फिर से लड़ाई छिड़ गई। ईरान के ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण किए। भले ही बाइजेंटियस ने 620 के दशक में इन प्रांतों को फिर से अधिकार में ले लिया, तो भी कुछ ही वर्ष बाद साम्राज्य को दक्षिण पूर्व की ओर से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। पूर्वी रोम और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के अधिकार में आ गए। इस प्रकार रोम साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। रोमन सभ्यता के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें पहला, रोम की सभ्यता का पतन का सबसे जो प्रमुख कारण था वो साम्राज्यवाद था। युद्धों और साम्राज्यवाद के कारण रोम में लोकतंत्र समाप्त हो गया। यही नहीं, जन समुदाय का आलसी होना, अकर्मण्य होना तथा राजनीतिक संघर्ष और भ्रष्टाचार के कारण भी रोम सभ्यता का पतन हुआ। इसके साथ ही ईसाई धर्म के फैलने से रोमन सम्राटों की शक्ति कम हुई, जो अंततः रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बना। गाथ, फ्रैंक, वैंडल आदि जर्मन कबीलों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य की शक्ति को
बहुत कमज़ोर कर दिया। और ये सब प्रमुख कारण थे जो अंततः रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बने।